अस्सलाम वालेकुम। MGT 501 फाइनल टर्म करंट पेपर विद सॉल्यूशन। तो मेरे पास इस तरह के 5 फीडबैक है स्टूडेंट के। अगर आप ये अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपका सब्जेक्टिव पार्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ये टाइम भी मेंशन है साथ-साथ। देखिए हम सॉल्यूशन पे आते हैं। ये एमसीक्यूज़ थे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लीडरशिप ट्रेट दैट इन्फ्लुएंस द लीडरशिप प्रोसेस? तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर ऑफ फॉलोअर्स। Increase absenteeism is related to which one of the following symptoms of the stress? इसका right answer है behavior. और the intrinsic reward includes the recognition. Process by which the sender puts a message in a certain format to send the receiver is known as encoding. अगर आपको एमसीक्यूज में कोई ऑब्जेक्शन हो कि इसका आंसर सही नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं क्योंकि मैंने जीपीटी से सॉल्व किया, आपके हैंडआउट्स नहीं देखे मैंने। Which of the following implies benefits is related to the indirect financial compensation? तो इसका है insurance. The conflict that takes place between the departments or groups at the same level of the organization, इसको हम बोलते हैं horizontal conflict. अब क्वेश्चंस पे आते हैं। Briefly describe the interactionist view in the conflict thought. तो ये हमारे पास होता है suggest that the conflict can be positive and beneficial for an organization. It believes that some degree of the conflict is necessary for the creativity, innovation and change. और नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विटी। ये तो हर बार आता है ये क्वेश्चन। इंटरनल इक्विटी हमारे पास होता है फेयरनेस इन पे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन एम्प्लॉयज कंपेयर देयर कंपनसेशन विद द कोवर्कर्स इन अ सिमिलर रोल। और एक्सटर्नल इक्विटी होता है फेयरनेस इन पे when they compare to the salaries of the similar jobs in an other organization of the industry. Next question है why do the organization measures the performance of the employees? इसका आंसर है आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एम्प्लॉयज, इंप्रूव द प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंसी, प्रोवाइड द फीडबैक। ये आप अपने लफ्जों में भी वैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग? Collective bargaining aims to the negotiate better wages, working conditions, benefits, and policies between the employees and the employers to maintain the industrial peace and the fairness. Next one है enlist any 3 types of the employment test. तो ये एक हमारे पास है aptitude test, पर्सनैलिटी टेस्ट, जॉब नॉलेज टेस्ट। तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें मेजर द कॉग्निटिव एबिलिटीज, असेस द बिहेवियरल ट्रेट्स और इवेल्युएट द टेक्निकल एक्सपर्टीज। Briefly describe the goal of the performance of the management, improve the employee's performance and productivity, align the individual and organizational goals, provide the feedback career development, or identify the training needs, ensure the fair compensation of the promotions. Long question जो थे वो था कि how can we determine the validity of a selection test? Describe the approaches to validate the test instrument. तो ये इसका है ensures that the test accurately measures what is the supposed to the measure. It can be determined using the content validity, criteria related validity, and construct validity. Detail आप खुद देख लेना. Describe the general guidelines for the administering discipline. Clearly define the policies and expected behavior. Ensure the fairness and consistency in the disciplinary actions. Follow the progressive discipline. Maintain the proper documentation of the offenses. Allow the employees to present their side and keep the discipline constructive and not punitive. Third question है long question. If the manager rates all the subordinates as a 3 on the scale of 1 to 5 during the appraisal, which performance appraisal error has a manager made? तो इसका है the manager has committed the central tendency error. ठीक है, डिटेल भी आप लिख लेना. Identify the 5 individual conflict management style. इसमें है avoiding, accommodating, competing, comprising and collaborating. नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं. इसमें स्टूडेंट ने लिखा है कि हम सोल्यूशन पे आ जाते हैं बस. ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉमन इंटरव्यूइंग मिस्टेक्स. एक तो है हेलो अफेक्ट, स्टीरियोटाइपिंग, लीडिंग क्वेश्चंस, टॉकिंग टू मच, फर्स्ट इंप्रेशन बाय एज. What kind of the problems are faced by the expertise when they return the home? तो इसका है reverse culture shock, job displacement, loss of status and benefits, family adjustment issues, and lack of recognition. Why should organization consider the suspending the employees as a disciplinary measure? इसका है investigate the serious misconduct before making the termination decision, give the employees time to reflect on their behavior,
prevent the immediate harm to workplace environment, maintain the fairness by allowing them time for the inquiry. Describe the various classifications of rewards. ये है हमारे पास intrinsic rewards, extrinsic rewards, इन दोनों का difference भी आता है वैसे monetary rewards and non-monetary rewards. नेक्स्ट वन है briefly explain. अगर आपको किसी को पॉइंट को डिटेल में पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज कर लें और उसको देख लें फिर. वैसे ये अभी के करंट पेपर्स हैं जो अभी जनवरी 27 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं. इसमें आता है, इसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ द जॉब परफॉर्मेंस में आता है एबिलिटी, मोटिवेशन, वर्क इन्वायरमेंट, जॉब डिज़ाइन एंड लीडरशिप एंड सुपरविजन. लॉन्ग क्वेश्चन थे. कैन वी से दैट देयर इज नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द अंडरस्टैंड इंटरव्यू? हाउ कैन वी इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू? ये मेरे टाइम पे भी आया था ये क्वेश्चन. क्लियरली डिफाइन द जॉब रिक्वायरमेंट्स, आइडेंटिफाई द की competencies to assess, train interviewers to minimize the bias, allow the candidates to elaborate their experiences and maintain conversational but professional approach. Next one है identify any 5 contingency factors that help to analyze the disciplinary problems. ये है एक severity of the misconduct, past disciplinary record, intent of the employee, impact of the organization, consistency in the disciplinary actions. Identify the 5 individuals conflict management styles. इसमें repeat है. और how would you differentiate MC Gregor's theory X फ्रॉम द वाई? एक्स वाई थ्योरी ये आता है, डिफरेंस इसका हर बार आता है. इम्प्लॉइज डिसलाइक, एक्स थ्योरी के अंदर क्या होता है, ये नेगेटिव है और जो वाई थ्योरी है वो पॉजिटिव है. इम्प्लॉइज डिसलाइक द वर्क, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये इम्प्लॉय नेचर की बात हो रही है. और इसमें है इम्प्लॉइज एंजॉय द वर्क एंड सीक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें है कि नीड स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन, इम्प्लॉइज आर सेल्फ मोटिवेटेड. और ये अथॉरिटेरियन होती है, डायरेक्टिव होती है, और ये पार्टिसिपेटिव और सपोर्टिव होती है. रिजिड स्ट्रक्चर विद क्लोज मॉनिटरिंग एंड इनकरेज द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. तो स्क्रीनशॉट ले लें और ये इसका डिफरेंस है. कंक्लूजन में ये बता रहे हैं कि एक्स अप्लाइज द ट्रेडिशनल कंट्रोल बेस्ड मैनेजमेंट, और वाई जो होता है फोकस ऑन द मोटिवेशन एंड एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट. ये इसका कंक्लूजन है. नेक्स्ट पेपर है ये 9:30 इसकी टाइमिंग है. ये बता रहा है स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअल था, HR के फंक्शन थे, केस सिनेरियो था. तो हम सोल्यूशन पे आ जाते हैं. HR के फंक्शन जो है ना, एक तो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड कंपनसेशन बेनिफिट्स, और उसके बाद एम्प्लॉय रिलेशंस. ये HR के फंक्शंस हैं. केस सिनेरियो विच मैनेजर्स विल हैंडल इट. तो ये है लाइन मैनेजर्स. लाइन मैनेजर्स होते हैं हैंडल्स डे टू डे ऑपरेशंस. ये MCQs बहुत आते हैं इसके. और जो HR मैनेजर्स होते हैं एम्प्लॉयज रिलेटेड पॉलिसीज, हायरिंग एंड ट्रेनिंग. और ऑपरेशन मैनेजर्स फोकस ऑन द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. एंड प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं ओवरसीज स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड टीम्स. नेक्स्ट वन है व्हाई द HR मैनेजर नेसेसरी. इसका वैसे ह्यूमन रिसोर्स होता है, जो मैनेजर होता है जो ह्यूमन रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है. इसके क्यों ज़रूरी है ये आप खुद से भी वैसे लिख सकते हैं. इंश्योर द लीगल कंप्लायंस एंड एम्प्लॉय प्रैक्टिसेस, मेंटेन द प्रोडक्टिव वर्क प्लेस, मैनेज द हायरिंग, ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट. तो बहुत से फंक्शन आप इसके लिख सकते हैं. व्हाट इज़ द जॉब एनालिसिस. एनालाइज वैसे भी होता है किसी भी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर देना सिंपलर के अंदर और फिर उसको स्टडी करना. एनालाइज उसी को बोलते हैं. और जॉब एनालिसिस भी इसी तरह से होगा. इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब्स ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिक्वायर्ड स्किल्स. इसमें आता है राइटिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन, डिफाइनिंग द जॉब स्पेसिफिकेशन, इम्प्रूविंग द हायर डिसीजंस, आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग नीड्स एंड सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. सो नेक्स्ट वन है what is HR planning. HR human resource planning is a process of forecasting an organization's future human resources needs and ensuring the right people are right positions at the right time. और इसके अंदर बाकी जो चीज़ें आती हैं, एक है assessing current HR capacity, forecasting future HR needs, identifying gaps, developing the action plans. लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाई डोंट टॉप मैनेजर्स नीड द टेक्निकल स्किल्स. अब जो टॉप के अंदर होते हैं ना उनके टेक्निकल स्किल्स कम होते हैं, अथॉरिटेटिव स्किल्स ज़्यादा होते हैं. द टॉप मैनेजर फोकस ऑन द स्ट्रेटजी एंड लीडरशिप रेदर देन द टेक्निकल टास्क. इसमें आता है डेलीगेट टेक्निकल वर्क टू एक्सपर्ट एंड मिड लेवल मैनेजर्स, मेक द हाई लेवल डिसीजंस, रिक्वायर द लीडरशिप विजन, नीड द स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, प्रायोरिटाइज द बिजनेस स्ट्रेटजी. वैसे आप अपने हैंडआउट्स को प्रेफर करना, कभी सिर्फ क्वेश्चंस, और बस आप अगर नहीं हैंडआउट्स पढ़ सकते, टाइम नहीं है, तो इसी पे भी रिलाई कर सकते हैं कम्प्लीटली. ये बता रहे हैं कि MCQs कुछ हैंडआउट से थे, कुछ कॉन्सेप्चुअल थे. व्हाई द HR मैनेजर्स आर कंसिडर्ड एज स्टाफ एम्प्लॉइज. सोल्यूशन पे आ जाते हैं हम डायरेक्टली. व्हाई आर द HR मैनेजर्स कंसिडर्ड द स्टाफ एम्प्लॉइज.
HR managers are considered staff employees because they provide support and advisory services rather than the directly gathering the revenue. और नेक्स्ट है, हाउ कैन द HRIS is be used as a strategic tool to formulating and modifying the HR plans. तो ये है tracking the workforce trends, predicting the future HR needs, automating HR functions. Next one है, how can the self-managed team be called a process team? Self-managed team are called a process team because they work independently, manage the entire process, have the authority to make the decision. That's why they are called a process team. Okay. Long question है, what constraints do the HR managers face while the planning for the recruitment? यहाँ पे constraint का मतलब होता है शराइत और recruitment का होता है भर्ती करना. ठीक है, अब क्वेश्चन समझ लगे. एक तो बजट लिमिटेशन उसमें आएगा, लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज आएगा, टैलेंट शॉर्टेजेस, इंटरनल पॉलिसीज एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स. Next one is explain the purpose of the strategic HR planning with an example. अब strategic HR planning के भी आपने इसका पर्पस बताना है. इसका है helps the anticipate the workforce needs, employee retention and business continuity. और इसकी एग्जाम्पल भी यहाँ पे दी हुई है. नेक्स्ट है, डू यू थिंक द चेंज इज नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन? यस, चेंज इज नेसेसरी और उसके रीजंस भी आपको बताई हुई हैं, क्योंकि मार्केट डिमांड्स चेंज होती है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, तो उस हिसाब से चेंजिंग्स आनी चाहिए. ओके, ये था सारा करंट पेपर्स मैंने आपसे शेयर कर दिए. मेरे एग्जाम्स हो गए हैं, मैं फ्री हूँ. अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है और आपको इस तरह से करंट पेपर सोल्यूशन के साथ चाहिए तो आप कमेंट कर देना. मैं या तो फिर डायरेक्टली क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगी इनबॉक्स उसके अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर, या फिर उसके ऊपर अलग से वीडियो क्रिएट कर दूंगी. अच्छा, चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.